ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 12۔ میری پتنی جب 7 ماہ بعد 2 بچوں کو جنم دے گی تو یہ راز اس سے آخر کیسے چھپایا جائے گا کہ اس نے 2 نہیں 1 بچے کو جنم دیا ہے۔ تو زنانیوں کے معاملے میں بالکل ہی کورا ہے، پتہ نہیں جادو ٹونے کیسے کر لیتا ہے۔ بوڑھے جگن سامری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ارے بالکے، زچگی کے وقت میری بیوی رچنی موجود ہوگی، یہ ایسے کاموں میں ماہر ہے۔ اس وقت باہر سے کوئی عورت تیری پتنی کے پاس موجود نہیں ہوگی سوائے میری پتنی رچنی کے۔ ویسے تو نے اچھا کیا جو یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ سائیں کوڑیل اپنی عقل مندی پر سر دھننے لگا۔ گلشیر وڈیرے سالار خان کے قدموں میں پڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ دہشت زدگی کے آثار اس کے سوتے ہوئے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ خوف کے باعث اس کا پورا جسم لرزیدہ تھا۔ وہ وڈیرے سالار خان کی ایما پر غرور اور اکڑ کے ساتھ بٹ سائیں کو اس کی جھونپڑی سے اغوا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ خوف کے مارے بھیگی بلی بن کر واپس لوٹا تھا۔ اس نے بٹ سائیں کے کرشمے سے متعلق وڈیرے کو سب کچھ بتا ڈالا کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے جھونپڑی کے اندر ایک بدروح پال رکھی ہے۔ وڈیرے نے خشمگین نظروں سے گلشیر کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، ارے تجھے کس نے کہا تھا کہ اس بدروح کے ساتھ بیٹھ کر کچہری کر؟ وہ بدروح تجھے کچھ نہیں کہے گی۔ اب سن میری بات غور سے ذرا دل بڑا کر اور اپنے سائیں کوڑیل کے پاس جا کر تعویذ لے کر دوبارہ باندھ لے، پھر وہ بدروح تیرا کچھ نہیں بگاڑے گی، کیا سمجھا؟ حاضر سائیں، میں کوشش کروں گا، گلشیر اپنے گھگیا ہوئے لہجے پر قدرے قابو پاتے ہوئے بولا۔ ارے کوشش نہیں بابا، تیرے کو ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے کتے اس لیے نہیں پالے کہ وہ ہمارے اوطاقوں میں پڑے اینڈتے رہیں، وڈیرے سالار خان نے نخوست سے کہا۔ برابر سائیں وڈا برابر، میں سمجھ گیا، آپ حکم کرو۔ ارے حکم کیا کریں، اچھا سن، تو ایسا کر کے بٹ سائیں کو گولی مار دے، قصہ ہی ختم۔ وڈیرے سالار خان نے صفاقانہ سرگوشی میں کہا تو گلشیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اود کر آئی۔ سکھاں کی جیسے دل کی بستی آباد ہو گئی تھی۔ ایک دیا تھا جس نے بجھے دل میں اجالا کر دیا۔ مراد بخش کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے خواب آگی آنکھوں سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ جس جذبے اور لگن کے تحت اسے بار بار ہیلے بہانوں سے تشفی دینے آتا تھا کہ بہت جلد اس کے دونوں بھائی میر نواز اور احمد نواز رہا ہونے والے ہیں، مگر سکھاں جانتی تھی کہ اس سے بات کرنے کے بہانے آتا ہے۔ سکھاں کو اپنے بھائیوں کی طرف سے بڑی فکر رہنے لگی تھی۔ روز روز کی تسلیوں سے تنگ آخر بالآخر سکھاں نے ایک دن تہیا کر لیا کہ وہ انب کی بار مراد بخش سے شکوہ کر کے ہی رہے گی۔ وہ اس سے ملنے کے بہانے روزانہ جھوٹی تسلی دیتا تھا۔ وہ دن کا ہی سہ پہر تھا۔ کچے صحن کی گارے مٹی والی دیواروں پر سنہری دھوپ اتر آئی تھی۔ مرغی اپنے ننھے منھے چوزوں کی فوج ظفر موج کے ساتھ دانہ دن کا چگتی پھر رہی تھی۔ ماسی انگیٹھی اور چولہے کے لیے ایندھن کے طور پر متعمل ہونے والے آپلوں کی تیاری میں گائے بھینسوں کا گوبر جمع کرنے کے بعد کچی دیواروں پر انہیں تھاپ رہی تھی، جبکہ سکھاں جھاڑو دینے میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سکھاں کا دل یکبار کی دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مراد بخش ہے۔ وہ اس پر جو ادھار کھائے بیٹھی تھی، سارا غبار خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بے تابی سے اٹھی اور پوچھا، کون ہے؟ ادی در کھول، ہم ہیں میرو اور احمد۔ باہر سے ابھرتی ہوئی اپنے بھائیوں میر نواز اور احمد کی آواز سنتے ہی
जैसे सुखा के तन मुर्दा में जान पड़ गई। वो मुसर्रत अमीर बेताबी के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ी और धड़ से दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसके दोनों भाई मौजूद थे। फरते खुशी से सुखा की आंखें भर आईं और वो अड्डा कहते हुए भाइयों के गले लग गई। दोनों उसके सर पर मुशफ़क़ाना हाथ धरे अंदर आ गए। सोमरी, पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल बड़ा बेचैन सा रहने लगा है। मैं मौत से नहीं डरता और ना ही मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को बेचैनी सी लगी रहती है। मैं जानती हूँ मलूक, मेरे सरीजन, तुम्हें मेरी वजह से बेचैनी रहती है। सोमरी ने मोहम्मद बलूच की बात सुनकर कहा। सोमरी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुझे कोई एक बार फिर मुझसे छीन लेगा, तुझे मुझसे दूर ले जाएगा और फिर हम कभी भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाएंगे दोबारा। मोहम्मद बलूच की बात सुनकर सोमरी के अनाबी होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट रक्सा हो गई, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखों की गहरी झील पर सोगवार चांद उदासी फैलाए हुए महसूस होने लगा, जिसका साफ मतलब था कि वो अंदर से एक नाकाबिले बयान उदासी में मुब्तला थी। वो दोनों इस वक्त झोंपड़े के अंदर आमने सामने बैठे महवे गुफ्तगू थे। बाहर ठठरती हुई पहर रात का सन्नाटा रेगजार में कोड़े वाले नाग की तरह रींग रहा था। चलो मेरे सरीजन, बाहर टहलते हैं, अंदर जाने क्यों मुझे वहशत सी हो रही है, सोमरी ने मोहम्मद बलूच से कहा और उसने असबात में अपना सर हिला दिया। वो दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए और रेत पर टहलने के से अंदाज में नामालूम मकाम की तरफ धीरे धीरे चल दिए। चहारसू वीरानी मुसल्लत थी। वो दोनों आपस में महवे गुफ्तगू थे। वो दोनों इस बात से कतई बेखबर थे कि एक शख्स मौत की तरह उनके ताक़ुब भी कर रहा है। ये गुलशेर था। वडेरे सलार खान ने उसे अब बट साईं का किस्सा ही ख़त्म कर देने के लिए रवाना किया था। हालांकि गुलशेर इससे कबल भी बट साईं को अगवा करने के लिए उसकी तरफ का रुख कर चुका था, मगर उसका टाकरा साईं की बजाय एक खौफनाक चुड़ैल से हो गया था और गुलशेर बाद में दहशत के मारे दुम दबाकर वहाँ से भागा था। उस पर वडेरे सलार खान ने गुलशेर के खूब लत्ते लिए थे। बिल आखिर गुलशेर को अब बट साईं के सीने में गोली उतारने का हुक्म दिया था। गुलशेर को यह काम कुछ आसान लगा और वैसे भी वो वडेरे की हुक्मदुली का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बहरतौर गुलशेर अब डबल बैरल बंदूक संभाले रात के इस ठठरते हुए सन्नाटे में जब बट साईं की झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो ठठक कर रुक गया। उसने बट साईं को झोंपड़ी से बाहर निकलते देखा। उसके हमरा गुलशेर को वो हसीन व जमील औरत भी नजर आई, जिसका नज़ारा चुड़ैल के रूप में वो पहले ही कर चुका था। गुलशेर तो जहाँ का तहाँ रह गया और खौफ के मारे उसका हलक सूख कर कांटा हो गया और उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत और सकत नहीं रही। वो जानता था कि यह हसीन औरत नुमा चुड़ैल बड़ी ताकत की मालिक थी, जो गुलशेर के मंसूबे से अच्छी तरह आगाह थी। वो उसे आखिरी बार धमकी भी दे चुकी थी। यही वजह थी कि गुलशेर खौफजदा हो गया, मगर उसने अभी वापसी का इरादा नहीं बांधा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो यूं ही लौट गया तो वड्डा भोतार उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। बिल आखिर उसने यही तहैया कर लिया कि अभी सिर्फ इंतहाई होशियारी और एहतियात के साथ उन दोनों का ताक़ुब करता रहे और फिर जैसे ही हसीन औरत नुमा बदरू बट साईं से रुखसत हो जाए तब वो बड़े आराम से बट साईं को अपनी बंदूक की गोली का निशाना बनाकर निकल भागेगा। लिहाजा गुलशेर अब कुछ दिल मजबूत करके बड़े होशियारी के साथ उनके ताक़ुब में लग गया। चहारसू रेत का समुंदर सा फैला हुआ था। तारों भरे आसमान में रेत के जर्रे मोतियों की तरह दमक रहे थे। बड़ा ही पुरइसरार माहौल था। गुलशेर बंदूक संभाले मौका की ताक में बराबर उन दोनों के ताक़ुब में छोटे बड़े रेतले टेलों के पीछे छुपता हुआ सोमरी और बट साईं पर शिकरे जैसी नज़रें जमाए हुए था। वो दोनों से लगभग 15-20 गज के फासले पर था।
गुलशेर ने उनके ताक़ब में चलते हुए एक बात नोट की थी कि रेत पर बट साईं के कदमों के निशानात तो बन रहे थे, मगर उस हसीन नुमा चुड़ैल के पाँव के निशानात गायब थे। एक लम्हे के जाने क्यों गुलशेर को अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सरसराहट सी महसूस हुई, मगर दूसरे ही लम्हे वो अपना दिल मजबूत करके आगे बढ़ने लगा। और फिर एक मौका पर गुलशेर का दिल मुसर्रत से धड़का और कदरे ठटक कर एक मुख्तसर से जबल भट्ट की आड़ में हो गया। वो क्या देखता है कि वो हसीन औरत और भट्ट साईं ठहर गए थे। सोमरी का अंदाज रुखसत होने का था। तब फिर अचानक गुलशेर ने देखा सोमरी का हसीन वजूद हवा में तहरील हो गया। ज़रा ही देर के बाद गुलशेर ने अब भट्ट साईं को वापस लौटते देखा। बस यही वो मौका था जब गुलशेर ने भट्ट साईं के सीने में अपनी बंदूक का मुहिब छरों वाला कारतूस उतारने का इरादा किया, और फिर उसने रेतले टेले की आड़ से शस्त बांधी और अपनी ही धुन में मगन मौत की सफाक घास से बेखबर भट्ट साईं के सीने का निशाना लेने लगा। उसका दिल जाने कैसी तेजी के साथ धड़क रहा था। भट्ट साईं अब खासा करीब आ चुका था। गुलशेर की एक उंगली अब लबलबी पे आ चुकी थी, और फिर इससे पहले कि वो फायर करता, अचानक दो अफराद उसे ललकारते हुए उस पर झपटे। आनन फानन एक खासी लहीम शहीम शख्स ने गुलशेर को बेबस कर डाला और दूसरे ने फौरन उसकी बंदूक छीनकर अपने कब्जे में कर ली। मुराद बख्श अजीब मुश्किल का शिकार हो गया था। जब से सुखा के दोनों भाई मीर नवाज और अहमद जेल से छूट कर आए थे, मुराद बख्श का सुखा से मिलने का बहाना जाता रहा था। खुदा न ख्वास्ता इसका ये मतलब भी ना था कि मुराद बख्श ये चाहता हो कि सुखा के भाई जेल में ही रहते, बल्कि वो तो खुश था कि उसकी महबूब हस्ती सुखा के भाई आज़ाद होकर घर आ गए थे। ये सुखा के लिए बड़ी खुशखबरी थी, और ज़ाहिर है सुखा की खुशी में उसकी खुशी भी थी, वरना मुराद बख्श को मासूम सुखा का चेहरा हर वक्त कमला कमलाया सा ही नजर आता। अब एक नदी के सरसब्ज करारे पर बैठा गहरी सोच में मुस्तगर्क था, और गहरी सोच सुखा से मिलने की कोई सबील तलाश करनी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो वदेरे से फारग हुआ था। नदी की दूसरी तरफ दूर तक आला जिन्स की ऐरी चावलों की जवान फसलें लहलहा रही थी। मुराद बख्श ने आज काम बेदिली से किया था। उसका बाप मोहम्मद बख्श भी ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर काश्त करता था, मगर अपनी सरकारी नौकरी की वजह से उसे कम ही वक्त मिल पाता था। अलबत्ता उसका बेटा मुराद बख्श कुल्ली तौर पर उस टुकड़े को बड़ी जान फिशानी के साथ संभाले हुए था। मौसम खासा खुशगवार था। चारों तरफ चमकीली धूप फैली हुई थी। नदी का पानी किसी शायर की गज़ल की तरह बड़ी नगमगी के साथ बहे चला जा रहा था। मुराद बख्श की कमर पर मट्टी का एक छोटा सा ढेला आकर लगा। उसने चौंक कर अकब में देखा। ज़रा फासले पर खेत के मुंडेर से पड़े बागड़ बिल्ला एस्तादा था, एक इंसानी पुतला जिसे खेतों के बीच खड़ा करते हैं ताकि कोई परिंदे कोई फसल खराब ना करे, और उसके बिल्कुल साथ सुखा उसे नजर आ गई। उसे देखकर मुराद बख्श का दिल खुशी से बिलियों उछल पड़ा, और उसकी तो जैसे मुराद बर आई थी। खुशी में वो इतना मस्त हुआ कि उसने भुरभरी मट्टी वाली ज़मीन से एक ढेला उठाकर उसकी तरफ खुशी के इजहार में उछाल दिया। सुखा अपनी अजरक की रंग जैसी बारीक मेहमन ओढ़नी दोनों हाथों से फिजा में लहराती हरनी की तरह कलांचे भरती उसके करीब आ गई। आज मैं तेरे को बड़ा याद कर रहा था सुखा, तू बैठ। मुराद बख्श ने मखमूर सी नज़रों से उसकी तरफ देख कर कहा। सुखा के उनाबी लबों पर मीठी मुस्कुराहट सी तैर गई, और उसने बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से मुराद बख्श की दुनिया ज़ैरो ज़बर करते हुए इठलादी वाली अंदाज में कहा, अच्छा मैं भी तेरे को बड़ा याद कर रही थी आज। फिर मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे कदम खुद ब खुद इस नदी तक आ गए। मेरे को मालूम ना था कि तू यहाँ होगा। इसी को दिल से दिल की राह कहते हैं।
सुखा मुराद बख्श उसकी दराज गैसों की महक अपने योरश ददा सांसों में उतारते हुए मोहब्बत पाश लहजे में बोला, अच्छा बता, तेरे भाई खैर से जेल से छूट कर आ गए, अब तो तू बहुत खुश है ना? यही तो मैं भी चाहता था, वरना तेरा हर वक्त उदास चेहरा देखकर मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती थी। हाँ मुराद, अब मैं भी वाकई बहुत खुश हूँ। अदा मीरू और अहमद के जेल से छूटकर घर आ जाने पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सर पर किसी ने दोबारा चादर ढांप दी हो, सुखा ने कहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अदा मीरू और अहमद को मानी टक्कर देनी है, बेचारी खेतों में सुबह से काम पर गए हुए हैं। जा चली जा, अब भला मैं तेरा क्या लगू हूँ? तेरे लिए तो सब कुछ तेरे अदा है ना, मैं तो ठहरा पराया छोकरा, भला मेरी क्या हसीयत। अचानक मुराद बख्श ने मसनूई खफगी से कहा और एक भुरभुरी मट्टी का ढेला उठाकर नदी की तरफ उछाल दिया। सुखा घास तिनका उसके कान में घुमाते हुए बोली, नाराज क्यों होता पड़ा है पराए छोकरे? अरे बाबा, परायों छोकरियों को ही तो आपड़ा बनाया जाता है, और एक दिन तू भी तो मेरा आपड़ा। इतना कहकर वो अपनी ही बात पर खुद ही शर्मा गई और सर झुका लिया। मुराद बख्श को उसकी ये अदा इस कदर भा गई कि वह बड़े चोर जज्बों के साथ सुखा के गुलाबी पड़ते चेहरे को मशहूर कुन नजरों से तकने लगा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो होने से चीखी, हाय मुरादे छोड़, किसी ने देख लिया तो? नहीं, पहले अपनी बात पूरी कर। मुराद बख्श उसे कहाँ छोड़ने वाला था। अच्छा बाबा, छोड़ तो सही मेरी गर्दन, बोलती हूँ, ये ले अब बोल। नहीं बोलती, जा क्या कर लेगा? ये कहकर सुखा नदी के किनारे किनारे हरनी की तरह कलांचे भरने लगी और मुराद बख्श उसके पीछे पकड़ने को दौड़ा। अब सुखा आगे थी और मुराद बख्श उसके पीछे। वो नदी के नाहमवार और भुरभुरी मट्टी वाले किनारे पर भाग रहे थे, जिधर कहीं कहीं घास के झुंड और जंगली पौधे भी उगे हुए थे। दफतन एक मकाम पर सुखा का पांव रपटा और वो जंगली बूटों के झुंड पर जा गिरी और अगले ही लम्हे उसके हलक से तेज सिसकारी अमीज करा खारिज हो गई। मुराद बख्श पहले तो यही समझा कि गिरने की वजह से सुखा के हलक से चीख निकली है, मगर जब उसने ये देखा कि सुखा बेदस्तूर अपना टखना पकड़े तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीची रोए जा रही है, तो उसका माथा ठटका। क्या हुआ सुखा? मुराद बख्श ये कहते हुए फौरन झुका तो उसकी पिंडली पर दो बारीक सुर्खी माइल सुराख साफ नजर आ गए। मुराद के चेहरे पर एकाएकी तशवीश के साए गहरे होते चले गए। उसे यह समझने में मतलक देर नहीं लगी कि सुखा को सांप ने डस लिया था। सुखा पर अब नींद बेहोशी तारी होने लगी। मुराद बख्श का दिल तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगा और उसने जल्दी से अपनी अजरक का कोना फाड़कर पिंडली पर बांध दिया और मदद के लिए वो परेशान को नज़रों से आसपास देखने लगा, मगर दूर दूर तक लहलहाते खेतों के सिवा कुछ ना था। सुखा अब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। मुराद बख्श उसके करीबल मर्ग जैसी हालत देखकर सन्नाटे में आ गया। वो बुरी तरह हवास बाख्ता होने लगा। सुखा का हसीन चेहरा कमलाने लगा था और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी के आसार धीरे धीरे नमूदार होते देखकर मुराद बख्श के हाथ पांव फूलने लगे। ताहम उसने जल्दी से सोचा कि परेशान होने से कुछ हासिल ना होगा। तब अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। उसे याद आया कि साईं कोड़ियल शाह की औताक यहाँ से दूर नहीं, लिहाजा उसने सुखा को उठाकर कांधे पर डाला। वो पागलों की तरह साईं कोड़ियल शाह के हुजरे की तरफ दौड़ता चला जा रहा था और साथ ही दिल में सुखा की ज़िंदगी के लिए भी अल्लाह से दुआएं मांगे जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सुखा की ज़िंदगी दर हकीकत उसकी ज़िंदगी थी। अगर सुखा को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता तो मुराद बख्श भी ज़िंदा दरगोर हो जाता। मुराद बख्श को मालूम था कि साईं कोड़ियल एक पीर फ़कीर आदमी है, वो ज़रूर दम करके ठीक कर देगा। रास्ते में चंद और लोग भी उसके साथ हो गए। हुजरे में पहुंचकर वहां मौजूद साइलों की परवाह किए बगैर वो अंदर घुस गया। सामने एक चबूतरे पर साईं कोड़ियल आंखें मूंदे तस्बीह के दाने रोल रहा था।
ससुर साईं, इस छोकरी को सांप ने डस लिया है, ये बेहोश हो गई है, खुदा के लिए साईं कुछ करो। मुराद बख्श ने तकरीबन गड़गड़ाते हुए साईं कोड़ियल से कहा। कोड़ियल शाह ने आंखें खोलकर जख्म का मुआयना किया। तब अचानक मुराद बख्श की नज़र एक मजहूल से बूढ़े पर पड़ी जो साईं कोड़ियल के बिल्कुल साथ ही बैठा था, और उसने सर्दी के मौसम में भी जिस्म पर सिर्फ बारीक कुर्ते की सदरी और धोती बांध रखी थी। ये साईं कोड़ियल का गुरु घंटाल सिफली इल्म का माहर जगन सामरी था। मुराद बख्श ने एक ख़ास बात महसूस की। वो पुरइसरार बूढ़ा बेहोश पड़ी सुखा को बड़े अजीबोगरीब नज़रों से यकटिक घूरे जा रहा था। साईं कोड़ियल सुखा की करीबल मर्ग हालत की बिना पर फौरन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। उसके दोनों चेले अरबेलू और मग्गू भी मौजूद थे। साईं कोड़ियल ने आंखें बंद करके चंद सानिये ज़हरी लब बदबदाने के बाद सुखा की पिंडली को गौर से देखा। जहां सांप ने डसा था वहां अब सुर्खी की जगह नीलाहट फैलने लगी थी। अगले ही लम्हे साईं कोड़ियल ने सांप के काटने वाली जगह पर अपना मुंह रख दिया और जहर चूस चूस कर थूकने लगा। मुराद बख्श दिल ही दिल में सुखा की जिंदगी के लिए दुआएं मांगे जा रहा था। अचानक उसने देखा कि साईं कोड़ियल के करीब बैठे उस पुरइसरार बूढ़े जगन सामरी ने आहिस्तगी से अपना हाथ उठाकर साईं कोड़ियल के शाने पर रख दिया। कोड़ियल ने कदरे चौंक कर जगन सामरी की तरफ देखा। जगन सामरी ने आंखों ही आंखों में साईं कोड़ियल को कोई पुरइसरार इशारा किया और फिर जैसे साईं कोड़ियल बूढ़े जगन सामरी का इशारा समझते हुए अपने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बश देने लगा। तब फिर साईं कोड़ियल ने मुराद बख्श से कहा, ये छोकरी तेरी क्या लगती है रे छोड़ा। मुराद बख्श उसके इस अचानक सवाल पर ज़रा गड़बड़ा सा गया, मगर उसे सुखा के सिवा उस समय कुछ और सूझ नहीं रहा था। साईं से बचा लो साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना। हाँ हाँ मौला साईं करेगा, ये ठीक हो जाएगी। अभी ये कुछ खतरे से बाहर है, हम इसे अंदर झाड़ पर रखना चाहते हैं ताकि जो बचा खुचा जहर इसके खून में सरायत कर चुका है उसका असर भी टूट जाए, साईं कोड़ियल ने कहा। मगर फिर दूसरे ही लम्हे अपनी घनी बुमें सुकेड़ कर गहरी और पुरतशकीक नज़रों से उसके चेहरे की तरफ घूरते हुए अपना सवाल दोहराया। अरे छोड़ा, तूने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये छोकरी तेरी क्या लगती है, क्या बहन है तेरी? नहीं साईं, ये मुझे उधर नदी के किनारे बेहोश मिली थी। मुराद बख्श ने द्रोगोई से काम लिया। उसे और कोई जवाब ही नहीं सूझा था। ऐसे में जबकि साइलों की सूरत में वहाँ गोट के और भी कई लोग मौजूद थे। देहात होने की वजह से यहाँ सब लोग एक दूसरे के शनासा थे। मुराद बख्श ने किसी बदमज़गी से बचने के लिए तो इस वक्त झूठ बोल दिया था, मगर शातिर साईं कोड़ियल ने मुराद बख्श के बचने से ज़ाहिर होती परेशानी से हकीकत को फ़ौरन भांप लिया कि ये इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा दिलदार होने का शाखसाना था। बगरना किसी पराये की खातर इंसान इस कदर खुद को हल्कान या हवास बाख्ता नहीं करता। मगर इधर मुराद बख्श की हालत ऐसी हो रही थी कि ऐसे लगता था सांप ने सुखा को नहीं बल्कि उसे डस लिया हो। फिर इससे पहले कि साईं कोड़ियल मज़ीद कुछ कहता, उसके करीब बैठे जगन सामरी ने कोड़ियल को टोकते हुए कहा, इस बात को छोड़ो, इसे अंदर ले चलते हैं। आओ छोकरा, तुम भी अंदर आओ। ये कहकर उसने अरबीलू को हदायत की कि वह सारे साइलों को जाने के लिए कह दे। बेहोश सुखा को हुजरे के अंदरूनी हिस्से के एक निस्बतन तंगो तारीक गोशे में पड़ी एक चारपाई पर लिटा दिया। यहाँ बूढ़े जगन सामरी की बीवी रचनी भी मौजूद थी। कमरे में अलाव रोशन था, जिसकी हिद्दत से अंदर की फ़िज़ा खासी सकून आवर और गर्म थी। जगन सामरी सुखा के सरहाने बैठकर बगौर कान की लो के नीचे कुछ देखने लगा और फिर अगले ही लम्हे जगन सामरी के चेहरे पर एक चमक उद कर आई। वो जल्दी से सीधा हुआ और साईं कोड़ियल के कान में सरगोशियाना लहजे में बोला, इस छोकरी को हर हालत में बचाना है कोड़ियल। कोड़ियल जगन सामरी की इस पुरइसरार सरगोशी पर भोंचका सा रह गया था, मगर दानिस्ता कोई सवाल ना कर सका। जगन सामरी ने अपनी बीवी रचना को इशारा किया
रचना ने जल्दी से अपनी बगची खोलकर कोई बूटी निकाली। साईं कोड़ियल से एक खुले मुंह वाले बर्तन में दूध मंगवाया और फिर उसमें उस बूटी का सफूफ बनाकर सांप काटने वाली जगह पर लेप किया और उसके बाद सुखा पर कुछ पढ़कर फूंका। सुखा को कुछ होश आ गया तो मुराद बख्श का दिल खुशी से धड़कने लगा। रचनी ने सुखा को जरा सहारा देकर उसे बिठा दिया और अब वो खासी बेहतर नजर आ रही थी। कैसी है अब तू छोकरी, मतली तो नहीं हो रही, चक्कर तो नहीं आ रहे? जगन सामरी ने अपने खड़खड़ाते लहजे को नरम रखने की कोशिश करते हुए सुखा से पूछा।